السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اوورسیز پاکستانی یوٹیوب چینل. میرا نام محمد ہے، میرے ساتھ رضا ہیں، حارث ہیں، اور ہمارے بہت آنرڈ گیسٹ شاہین صبائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو صبائی صاحب فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو سلام میرا. صبائی صاحب تھینک یو فار ٹیکنگ اپ دا ٹائم. آئی ایم گونا پاس دس اوور ٹو رضا. رضا کے پاس کوشچن ہے. رضا پلیز ٹیک اٹ اوے. جی السلام علیکم سے بھائی صاحب. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے، ہلچل چل رہی ہے، اور یہ ساری ہلچل شروع ہوئی ہے سر یہ جو ہم جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ایک الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک ویو چلی ہے چیزوں کی. اینڈ ویئر سینگ کہ خان صاحب نے کال بھی دی ہوئی ہے 24 کی، جس کے ارد گرد بہت زیادہ ہلچل پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس ٹائم پہ. بٹ ساتھ ساتھ شاہین بھائی صاحب ایک رومر بھی چل رہا ہے اباؤٹ سم سیٹلمنٹ بٹوین خان صاحب اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے اراؤنڈ کوئی سنا ہے کہ کوئی ڈرافٹنگ بھی ہو رہی ہے. آپ کا اس پہ ٹیک لینا چاہتے ہیں کہ ڈو یو فیل کہ یہ ڈرافٹنگ کے ٹائمنگ جو ہے یہ تھوڑے سے آڈ نہیں ہے؟ کہیں یہ جو 24 کی کال ہے اس کو تو نہیں یہ کوئی امپیکٹ آئے گا اس کے اوپر؟ اور اگر یہ ہے تو اس کا آگے جاتے ہوئے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس میں اف یو تھنک یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے، یہ بات چیت تو دیکھیے خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اینی آف دی جوکر جو گورنمنٹ والے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہی وانٹس اسٹریٹ ٹاک ود دی آرمی کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، لیٹس ٹاک. کوئی بیچ میں اگر آتا ہے میڈیشن کرنے یا گارنٹی دینے، جو بھی کرنا ہے کرے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو یہ تو بہت دن سے ان کا ڈیمانڈ ہے، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی میں بات کروں گا اور کرنا چاہتا ہوں. اور اب یہاں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو ایک ڈرافٹ چل رہا ہے جس سو کالڈ، وہ اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس 24th. اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ اس بات چیت پہ یا یہ جو بھی کچھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں یا ہوں گی، فرق بہت پڑے گا. 24th will be a major influence impact on that. اگر یہ بہت زبردست ہوا تو اس کا پھر زیادہ ڈفرینٹ ایک ریزلٹ نکلے گا، اگر نہیں ہوا تو اس کا ریزلٹ ڈفرینٹ ہوگا. اگر یہ چیز ریلیٹڈ ہے ود دی الیکشنز ان دا یو ایس. 20th January is the date when Mr. Trump will take over. اس سے پہلے the think tanks here, the Republican think tanks, the independent think tanks, پاکستانی جو لوگ ہیں انوالو ہیں، وہ سارے they are trying to bring together a paper or a document which they can present to the new administration کہ جی ان لائنز پہ بات ہو سکتی ہے، اب آپ کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں تو کریں. تو یہ میرا خیال، میرا تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی 24th. It's an independent exercise going on separately. ٹھیک ہے سر. تھینک یو صبائی صاحب. آپ نے تھنک ٹینک کی بات کی ہے صبائی صاحب. تھوڑا سا میں ہیومر اس میں انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اٹس ویری سیریس. آج میں سن رہا تھا ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ایک نیوی کیڈٹ کو اسپیچ دے رہے تھے، اور جس قسم کی انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ اس اسپیچ کے اندر آپ کسی بھی نارمل آدمی کو سنائی دے رہا تھا. آپ کے خیال میں ایک آدمی جو ویری کلیئرلی، اگر کوئی جس بندے نے تھوڑی سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، وہ آپ اس بندے کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ یار یہ ایک ویری ڈپرائیوڈ قسم کی ایک مائنڈ سیٹ کا ہے. ان کے ساتھ آپ کس طرح، یا آپ بات کر رہے ہیں کہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تھنک ٹینکس کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو ریشنلائز ود اے پرسن لائک دس جس کی اونلی موٹیویشن اور اکامپلشمنٹ پچھلے 2 سال کی یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو پھینٹا لگایا، لوگ مارے ہیں، اور پھر آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو ایسے ایک آدمی کے ساتھ جس کی مائنڈ سیٹ اتنا لاکڈ ہے، کیا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک آدمی کے ساتھ نیگوشیٹ میرا خیال ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے تھے. نیگوشیٹنگ ود دی انٹائر اسٹیبلشمنٹ، ود دی ہول آرمی، کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں جو ٹرمز، اگر وہ میں نے پیپر وہ ایک سرکولیٹ بھی کر دیا تھا، ٹویٹ کر دیا تھا تاکہ لوگ پڑھیں، اس پہ ڈسکشن کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جی دیر آر سم ٹرمز فار دی پی ٹی آئی کہ جی آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اینڈ دین دیر آر ٹرمز فار دی آرمی کہ جی آپ یہ کریں
ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। उन टर्म्स में ये है कि जी आप सबसे पहले तो जो 2 साल आपने ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्राइम्स अगेंस्ट द पीटीआई इमरान खान, ये जो कुछ आपने किए हैं ये आप एडमिट करेंगे कि जी यस वी हैव डन दिस, नंबर 1। फिर आप यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज पीपल हु हैव डन दीज क्राइम्स, बड़ा छोटा मारना, ये वो, आईएसआई चीफ, एनीबॉडी, मिलिट्री चीफ, कमांडर, सेक्टर कमांडर, जो भी थे आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको आप यू विल साइडलाइन देम, आप उनको कहेंगे कि जब आप हट जाए, और देन यू विल गारंटी, एंड दिस विल बी ऑल अंडर international guarantors, whoever they are, we don't know who may be ready to do that, but international guarantors जिसमें के अमेरिकन भी हो सकते हैं, सऊदीज भी हो सकते हैं, और अरब हो सकते हैं, या एक मिल के एक ग्रुप हो सकता है, व्हाटएवर, वो सब गारंटी करेंगे कि जी ये जो टर्म्स हम एग्री करेंगे ये वी विल इम्प्लीमेंट देम, इसमें जो कोई भाग नहीं सकता। तो आर्मी के ऊपर जो टर्म्स उन्होंने दी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो तो ये है कि जी आप यू विल हैव टू एडमिट योर गिल्ट फ्रॉम ए टू जी, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि जी वी विल नॉट डू इट अगेन, वी विल नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, वी विल डू अनदर इलेक्शन अलाउ करेंगे हम, या पुराने इलेक्शन को ठीक करेंगे, व्हाटएवर द एग्रीमेंट में भी, और फिर जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको हम चलने देंगे, एंड दिस विल बी आवर फ्यूचर कोर्स, हमारा कॉन्डक्ट ही होगा। उसके बाद फिर ये कि पीटीआई वाले या नई गवर्नमेंट आके इन सबको बजाय सजा देने के कहे कि जी एमनेस्टी देने के लिए, ओके यू आर ऑल गॉन बट यू कांट कम बैक इन एनी फॉर्म इन एनी गवर्नमेंट पोजीशन और इलेक्शन और व्हाटएवर। तो इस टाइप की कोई एक राउंड चीज बनाई जा रही है या ख्वाहिश है कि बन जाए। तो अभी तो मतलब नॉट अबाउट 1%, और उसमें द फाइन लाइन डिटेल इज अगर ये इनको मना लिया जाए, मान लिया जाए कि जी ये आइडेंटिफाई करेंगे एवरी पर्सन हु डिड व्हाट रॉन्ग, उसमें तो बहुत सारे जर्नल्स और खुद जनरल आसिम मुनीर भी आते हैं, तो दे विल हैव टू से कि जी इन्होंने ये ऑर्डर दिए थे या किस लेवल पे ऑर्डर आए थे, क्यों, किसने, जो मरा है कोई, जो लोग, पूरी की पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, पूरे के पूरे शहर आपने बंद कर दिए, बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड, पीपल हैव लॉस्ट, यू नो, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। तो जनरल आसिम मुनीर विल आल्सो कम इन, एंड देन इफ इट सेज कि जी दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, टू ही विल हैव टू गो। ये बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डीप रिटन चीज है। ये तो बेसिकली जी वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जिस तरह लोग मुल्कों में हुई है उसी तरह का ये बेसिकली एक होगा। Sort of truth and reconciliation, yeah, that's correct, it is, but the point is कि who is going to implement this? असल बात तो ये जी। सो भाई साहब, सो ठीक है, लाइक उस एक तो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो ये है कि ये एट सम पॉइंट ये स्टेलमेट जो हुआ है, जो दो साइड्स पीटीआई और पाकिस्तानी अवाम एंड देन द एस्टैब्लिशमेंट और उनके ये टोडीज जो हैं, ये एक स्टेलमेट इनका बना हुआ है। वो अपनी डंडा लेके बैठे हुए, ये लोग कहते हैं जितना मारना मार लो, हम तो वो नहीं करेंगे। सो प्रैग्मेटिक अप्रोच तो यही होगी, भाई आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपका ओपिनियन क्या है? लाइक आपने अब जिस तरह ये रोल आउट किया है कि आर्मी को आफ्टर एडमिटिंग कि ये हमने किया है एमनेस्टी मिल जाए, आपका पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में क्या है? देखिए, मेरा ओपिनियन पर्सनल, I will give my opinion once I get a final draft कह लें या फाइनल अंडरस्टैंडिंग कह लें कि जी ये चीजें हम एग्री करते हैं दोनों पार्टी जी। अभी तो ये दीज आर ऑल यानी नेगोशिएटिंग पॉइंट्स जिनको कहते हैं कि स्टार्टिंग योर बिड आप बहुत लो करते हैं, फिर हाई करते हैं, फिर या बड़ी डिमांड करते हैं, फिर उसमें से आप मानते हैं, 10 डिमांड करते हैं तो 5 मानते हैं, मतलब दिस इज नेगोशिएटिंग बार्गेनिंग थिंग। अभी हमें ये नहीं पता कि क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, या बात चलेगी भी नहीं चलेगी, विल देयर बी एनी इंटरनेशनल गारंटी, और गारंटर कोई जिम्मेदारी भी लेगा कि जी हम ये मानने को तैयार हैं, करने को तैयार है, इम्प्लीमेंट कराने को तैयार है, तो ये सब बातें हवा में। तो दिस इज लेट्स सी इफ दे कम अप विद समथिंग।
اصل جو آئیڈیا ہمارا بھی ہے اور سب کا یہ ہے کہ جی یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس سے آپ آگے نکلیں. پورا ملک اس میں آپ نے جام کیا ہوا ہے, بند ہے سارا کا سارا. ایوری تھنگ از ویٹنگ فار دس ڈیڈ لاک, اور یہ جو گریڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی پارٹی کو آپ نے ڈنڈے مار مار کے کونے میں لگایا ہوا ہے. جو باقی جوکرز ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. آرمی کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہی, اس کے they are losing their جو ان کی وجہ شہرت جو ہے, جو ان کی جو نون نہیں, جس ویری پروفیشنل آرمی جیسے, اور ان کے اتنے لوگ مر رہے ہیں, اتنے اٹیک ہو رہے ہیں یعنی بلوچستان میں اور کے پی میں اور ہر جگہ پہ, اور ان کے ایس ایس جی کے کمانڈوز مر رہے ہیں. یہ کام ہے ان کا, اس کو روکنا اور اس کو جا کے دیکھیں. اگر وہ یہ نہیں کر رہے اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں تو وہ تو پھر اپنا کام ہی نہیں کر رہی ہے. تو دس از واٹ ایوری بڈی وانٹس کہ دس گریڈ لاک شوڈ اینڈ, لیٹس گو فارورڈ. اگر بعد میں آپ نے معافی دینی ہے کہ کسی کو ہم پکڑیں گے نہیں, لیکن ان کو دوبارہ آنے بھی نہیں دیں گے. ان کو پھر دے شوڈ ناٹ بی اینی نیئر ٹو دس گورنمنٹ اور پالیٹکس. تو یہ سب چیزیں ابھی دیر ان دا ایئر, بٹ دیز آر دا تھنگز وچ آر ریکوائرڈ. بالکل جی, you're spot on. ایک حارث کا کوشچن تھا, یہ ایک دم آرمی کے جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کے بارے میں ایک جو سوئچ آیا اس کے بارے میں آئی تھنک حارث کا ایک کوشچن تھا. تو حارث I'll pass it over to you. جی تھینک یو شاہین سے بھائی صاحب, تھینک یو فار ریلیزنگ دس ڈاکیومنٹ جو آپ نے ریلیز کیا ریسنٹلی. یو نو اس نے تو تہلکہ مچا دیا ہر طرف, اینڈ اس میں ہوپ بھی ہے بندوں کے لیے. چلو ٹھیک ہے, there is positive movement in Pakistan politics. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ جو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا اس ڈاکیومنٹ کو, یہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ انیشل پاسچرنگ ہے, انیشل ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر both parties are taking extreme positions, right? اور پھر وہ نیگوشیشن کا ایک پروسیس آئے گا پورا کا پورا. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب اور یہ سہیل ورائی صاحب, یہ in the way آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے یہ بیانات ریسنٹلی دیے ہیں؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ they're just jumping ships right now. دیکھیے یہ بہت سے دوست, ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کولیگز بھی رہے, دوست سے بھی لگائی ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں, ملتے ہیں جلتے ہیں. بٹ دیر آر سم پیپل ہو آلویز چینج دیئر پوزیشن. جب وہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہ اب موو کر رہا ہے, the air is different, تو وہ پھر they keep moving their stance, اور نجم سیٹھی صاحب نے تو اب 2 سال سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو جو ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ سب بڑے غصے میں باتیں کر رہے ہیں. تو دیر از سم تھنگ وچ ہی واز ایکسپیکٹنگ اینڈ ہی ڈڈنٹ گیٹ. نمبر 1, یا وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ جی ان کی بیگم بھی کیونکہ پالیٹکس میں وہ شی از آلسو این ایم پی اے فرام نون لیگ, ان کو کچھ ملے گا, کسی کو کچھ نہیں ملا, تو ہی از ناؤ بیکم رادر جی ہم نے اتنا سپورٹ آپ کو کیا, کچھ ملا نہیں. That may be one reason, it may not be this reason only. یہ سب اپنے لوگ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی پوزیشن, but they have a right to do it. اور پھر لوگ, ہمارا بھی رائٹ ہے کہ جی if they change their position, so we can comment on it, good, bad, whatever they have done, we can tell them. یہ تو ایک چینج جب آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اپنی پوزیشن بھی بدلتے ہیں اور اپنی whatever they have been saying. مگر اب آج کل کا جو دور ہے, this period is a digital media. اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے, ہر within a second you get back to old statements and old جو کچھ آپ نے بیان دیے ہوئے ہیں, جو کچھ آپ نے کہا ہوا ہے, ان کو آپ کو 1 سیکنڈ میں مل جاتا ہے. and then you can play both and then people have to decide کہ جی یہ پہلے یہ کہہ رہے تھے, اب یہ کہہ رہے, کیا ہو گیا, پوچھیں ان سے. تو یہ تو آج کل بھاگنا مشکل ہے. آپ اگر آپ نے پوزیشن چینج کی ہے تو یو ہیو ٹو آنسر وائی, اور اب کیا چینج ہوا ہے جو آپ نے اپنا ایک بیان آپ دے رہے ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر بھائی صاحب. میری اس پہ جو تھوڑی سی ایک اسیسمنٹ ہے وہ یا تو ان کو کرسپ قسم کی کوئی اوورسیز پاکستانی سے, وہ لندن میں ہے نا سیٹھی صاحب,
तो बड़ी क्रिस्प किस्म की कोई उनकी गुफ्तगू हुई है किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से रोड की दूसरी तरफ से? many reasons, there can be many reasons, yeah. वो उन्होंने खुद जाके देखा होगा अपने आप के ये यहाँ पे क्या फीलिंग है, what people are saying, how people are reacting, और ये क्या अगर लोग करेंगे तो उन्होंने हो सकता है he was influenced by जी यहाँ तो सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान में तो हमें क्वेश्चन बहुत बताता ही नहीं है कि जी ये हो रहा है, दैट मे बी द रीजन, बिल्कुल ठीक है, बट he has to tell us why. Of course. I doubt कि he will, क्योंकि ये आज से 1 महीना पहले यही साहब आके ना करे तो ठीक है, then he faces whatever the music comes, you know. यही अभी 1 महीना पहले बैठ के कह रहे थे अपने इसी शो के ऊपर कि इनको दें फजल रहमान को जो भी देना है, इनको नजर नहीं आ रहा है, इनकी मौत है अगर ये अमेंडमेंट ना हुई, और ये इस तरह की बातें कर रहे थे. नाउ ही कम्स इन, वही वाली क्रोकोडाइल टीयर्स आप जो कहते हैं कि लाइक लोग पागल नहीं बनेंगे, वो सारी डिजिटली स्टोर्ड सब कुछ है. एनीवे आई एम गोइंग टू पास इट टू रजा. रजा प्लीज टेक इट अवे. जी शाहीन साहब, आप जिस तरह ये सारी बात हमने की है और ड्राफ्ट की बात भी हो रही है और सारी सेटलमेंट की बात हो रही है, तो जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर दोनों पार्टीज खड़ी हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हुई थी और खान साहब का भी था. खान साहब तो बेसिकली इंसाफ मांगते हैं, कहते हैं उनकी तो तहरीक ही पूरी ये रही है जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं. सो डोंट यू थिंक एट दिस पॉइंट जब अब अवाम के सामने भी सारी चीजें आ गई हैं, अगर खान साहब उस तरफ जाते हैं जहाँ पे ये ट्रूथ और रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं एंड वी लेट दीज पीपल, चले मान लेते हैं कि जी आपकी 5 लाख की फौज में से सिर्फ 10,000 जो ऑफिसर हैं वो करप्ट थे या उन्होंने ये सब चीजें की और बाकी सारे सही हैं. सर हमारे पास एक टर्की का भी एग्जांपल है जहाँ पे ये टर्की के अंदर भी हरकत हुई थी और वहाँ पे अवाम निकली और अवाम ने अपने मैटर्स को अपने हाथों में लिया और उन्होंने ओवरटर्न किया, एक कूच वहाँ पे हुआ था और हम देखा उसके बाद से उन्होंने उन ऑफिसर्स को जिन्होंने ये सारी हरकतें की थी वहाँ पे उनको सॉर्ट आउट किया. तो डोंट यू थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड कि अवाम जो अब निकल रही है और खान साहब ने भी ये कॉल जो दी है, दिस इज द वे फॉरवर्ड? आइडियली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आइडियली दिस इज द वे फॉरवर्ड, बट देन यू हैव टू प्रूव कि मेरे पास अवाम की इतनी ताकत है कि मैं आपको ओवरटर्न कर दूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, आप भाग भी सकते. दैट इज एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई आई से कि 24th को जो या 24th के बाद कितने दिन ये इनका धरना जो है या प्रोटेस्ट चलेगा, व्हाट विल हैपन, हाउ विल दिस एंड, हाउ विल दिस बिगिन. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई. ही हैज टू bring it out and then show the army कि जी look we have this, if you don't agree then we will sit here, we will overrun you, if you can do it. That is the main question. लेकिन अगर आप पिछले 2-3 दफा जब ये हुआ कि जी वो लोग आए, हजारों लाखों लोग लेकर के आए, then the leadership उनके पांव कांप गए, भाग गए, कुछ लोग, कुछ नहीं आए, it ended in a fiasco. अगर इस तरह होना है तो फिर तो then they are going nowhere, सीधी सी बात. और अगर होना है कि yes we are here, धरना दे के बैठ जाए, now talk to us, then they have to talk, and then they have to talk on some points which they have, they will come up and the other party will come up. और फिर उसमें important सबसे बात होगी कि who is going to guarantee कि यह implement होगा. So these are very open questions. आप इसमें कोई गारंटीज आता है, सुप्रीम कोर्ट आपकी आगे गारंटीज देती है या आपके कोई इंटरनेशनल फ्रेंड्स आगे गारंटी देते हैं या क्या गारंटीज देते हैं, ये these are open questions. इसमें अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा, बट होगा यही, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि ये लड़ाई खत्म हो. अगर कुछ 10, 20, 50, 100, 1000 लोग आइडेंटिफाई होते हैं जिन्होंने गलत काम किया, उनको आप साइड में निकाल दें. जो जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, जिन लोगों की डेथ हुई है, इंजरीज हुई है, बिजनेसेस उनकी डैमेज हुई है, उनको आप कॉम्पनसेट करें, उनको आप दोबारा रिहेबिलिटेट करें. और उसके साथ फिर ये कि जो एक्चुअल ग्राउंड जो लोगों की जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है, चाहे वो नए इलेक्शन के आप करा लें या पुराने कोई ठीक कर ले, वो आप मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, and on that basis there will be a new set of government and that will be allowed to run. तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है और ये होता इसी तरह. अब ये डिपेंड ये करेगा कि जी आप अपनी कितनी पावर शो करते हैं. आर्मी ने और इन्होंने तो अपनी पावर शो कर दी कि हम तो डंडे चलाएंगे और कुछ नहीं. में चलिए ठीक है, अब उसकी दूसरी साइड ने भी अब दिखाना है अपना जोर. सर बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहीन साहब. इसको एक और तरह से देख लेते हैं. देखें ये जो सारा मामला है, आपको पता है, हमें सबको पता है कि एक साइफर से कहानी शुरू हुई थी और यहाँ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा स्टांस था
जिसके बाद एक तसलसल चला और नो कॉन्फिडेंस का एक वो मोशन आया, और उसके बाद से पूरा 2 साल के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो सामने आई। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है यहाँ से, और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो भी ट्रम्प साहब जो हैं वो तो ओपनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपनी डीप स्टेट के बारे में क्या बोल रहे हैं, आए दिन उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एंड ही इज़ वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। तो विद दैट चेंज दैट्स हैपनिंग, आई मीन मैं फिर से वही उधर ही आऊंगा बात को कि ये ठीक है, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ हम जाना चाहिए, और जिन लोगों ने की हरकतें उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उनको साइड पे कर देना चाहिए, बट विल दैट चेंज मैटर्स? क्योंकि कल को कोई और फौजी उठ के, जनरल उठ के भी यही हरकत कर सकता है। तो डोंट यू थिंक कि वंस एंड फॉर ऑल कहीं पे या कि हमें इसके ऊपर ब्रेक लगनी चाहिए, कहीं पे एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए, चाहे आप इनको उम्र कैद करें, ये कोई किसी किस्म की सजा तो होनी चाहिए सर। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? सर बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और आप सबको पकड़े जिसने गलत काम किया है, और प्रूव करें कि जी दिस इज योर क्राइम एंड दिस इज द पनिशमेंट यू आर गोइंग टू गेट। ये तो सीधी सी बात है, मगर आपके पास इतनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, स्ट्रीट्स पे आपके साथ लोग होने चाहिए, इंटरनेशनली लोग आपके साथ होने चाहिए हु सपोर्ट यू। और जैसा टर्की में हुआ है कि फौज के अंदर से भी लोग निकल आए, तो दैट्स ए टोटली डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन वो अगर आप साबित कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं, तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेगोशिएट ही करना है और नेगोशिएट करना है, तो देन यू मस्ट बोथ पार्टीज probably will want and ask for a face saving के लिए, अच्छा ठीक है हम करते हैं, लेकिन उसमें फिर then the role of the guarantors, international friends and all that comes in, कि किस तरह की गारंटीज आप देते हैं, किस तरह की वो अगर कोई वायलेट करेगा तो उसका क्या होगा, कोई अगर बात नहीं मानेगा या एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा। तो these things have to be number one discussed, negotiated, finalized, agreed, signed, and international guarantees have to be put in there कि जी आप ये नहीं करेंगे तो पूरा IMF बंद हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, whatever the conditions में भी, कि अगर आपने वायलेट किया तो क्या होगा, फौज के ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे, फौज को हम डिक्लेयर कर देंगे कि दिस इज रोग आर्मी, whatever it can be। तो ये चीजें होनी तो इस तरह होती हैं, बट दिस इज टू अर्ली टू से कि जी क्या होगा। जी थैंक यू सर भाई साहब। हारिस, I'll go to you। मेरे पास भी एक क्वेश्चन था, but I'll go to you first। सर भाई साहब, यू नो अभी जो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके अंदर जो उभर के एक बंदा सामने आया है वो जुल्फी बुखारी आया है, जिस तरह उसने गवर्नाइज किया पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल उन्होंने एक मूवमेंट बनाई है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। आपके ख्याल में इमरान खान का लिंचपिन कौन है, कंसिडरिंग ही इज इन जेल? क्योंकि गंडापुर तो नहीं है वो, आई डोंट थिंक सो। तो वो कौन है जो कि यू नो हु कैन टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड? देखिए, इमरान खान इज इमरान खान, उसकी पार्टी तो वही ही कैन टेक इट फॉरवर्ड, और कोई उसमें पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इमरान खान के या तो मर्जी के बगैर या ऑन हिज ओन ये सब बातें कर सके। दिस इज नॉट पॉसिबल। इमरान खान को अगर आपने जेल में बंद करके नेगोशिएट करना है या बात करनी है, तो दैट्स नो नेगोशिएशन। वो तो फिर आप सरेंडर की बात कर लें या जो भी कहें आप। तो वी डोंट नो कि जी प्रेशर किस पे कितना है इस वक्त के टू गो एंड हैव अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। किस पे? आर्मी पे ज्यादा प्रेशर है। मेरा ख्याल में तो आर्मी पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी 2 साल से उन्होंने ली हुई है, हर काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने गले में डाल ली है। And they think that we are becoming powerful, and they think we are becoming more, entrenched in the system. and अब हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। तो इकोनॉमी भी हम चलाएंगे, तो बिजनेस भी हम चलाएंगे, तो DHS भी हम चलाएंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम चलाएंगे, तो सारा कुछ हम करेंगे। बट द रियल फैक्ट इज कि हर चीज में वो किया, उन्होंने कोशिश की है, एंड दे हैव फेल्ड। तो दैट इज द प्रेशर इज कमिंग ऑन। आपने सब कुछ अपने गले में डाल लिया और आप कर डिलीवर कुछ नहीं कर सके। इमरान खान तो जेल में बैठा है, वहीं बैठा हुआ है, ही इज जस्ट लाफिंग एट यू। तो ये और लोग जो है वो सपोर्टिंग हिम ऑल द वे थ्रू। तो प्रेशर तो उन पे है, और उन्होंने अगर आगे जाके और चलाना है मुल्क को, तो कैसे चलाएंगे? दे कांट।
दिस इज वेयर द प्रेशर कम्स इन कि जी अब इसको कुछ चेंज करें थोड़ा सा, एंड हाउ यू डू इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग यू आर. प्लीज. जी सर भाई साहब, you're 100% right. I just hope, क्योंकि हम बाहर पाकिस्तान ओवरसीज बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें तो यहाँ से गुस्सा भी चढ़ता है कि यार इन लोगों ने जो जो चीज़ें की हैं लोगों के साथ, इनको इस तरह माफ़ी नहीं देनी चाहिए. बट ऑन द अदर साइड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में लोग सफ़र कर रहे हैं. सो इफ़ देयर इज़ अ पाथ थ्रू दिस जहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी ये इमोशंस को साइड पे करके एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड करें, मूव थिंग्स टू द राइट वे, आई थिंक दैट इज मे बी अ पाथ टू एक्सप्लोर. लेकिन आई जस्ट होप, और आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, प्लीज़ आप ये अगर कर सकें, ये एक आइडिया, अगर ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि जी रेपरेशंस मिलेंगी लोगों को जिनके खिलाफ इनने इस तरह की हरकतें की हैं, दे शुड, दोज रेपरेशंस शुड नॉट बी अगले साल के बजट के अंदर एडिशनल एक फंड डाल के कि जी हम वो रेपरेशंस पे करेंगे. दीज शुड बी टेकन अवे फ्रॉम ये आपके ये फौजी जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर से निकाल के इनको देनी चाहिए, नॉट कि अगले साल पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से वापस बजट के अंदर एक और चीज डाल के और उनको पैसे दें फॉर व्हाट दिस आर्मी हैज डन. सो प्लीज अगर आपसे अगर हो सके तो आप ये These are details which have to be worked out, and this will all depend on who is stronger on the table, who is stronger on the streets, और कौन किस जगह पे खड़ा हुआ है. Where are you talking from? आपकी जो negotiating पावर है वो कितनी है आपके पास, उनके पास ज्यादा है, आपके पास ज्यादा है. अगर तो पीटीआई लोगों को निकाल ले, हजारों लाखों लोग आ जाए, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है उनको. इट विल बी लाइक अ बांग्लादेश सिचुएशन. अगर आपने रिजिस्ट किया हमारा तो लोग चढ़ाई कर दे तो देन इट्स ऑल ओवर. दैट इज वन टाइप ऑफ अ सोल्यूशन. टर्किश सोल्यूशन भी है, बाकी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी है. इफ यू डोंट फील स्ट्रांग इनफ कि जी हम ओवररन कर देंगे हर चीज को, तो देन वी कैन गो फॉर अ reconciliation. International mediation is also a solution. वो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्या कहता है, these are all open. लेकिन प्रेशर इस वक्त लग ये रहा है कि आर्मी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे इतना ज्यादा है कि they just want this stalemate to end, और they want a face saving. अच्छा, हमें यानी ये आप खुद, मैंने उनका बयान सुना खुद, जनरल नईम लोधी साहब जो है वो बीच में ये कुछ बात कर रहे थे इसी तरह की कि जी वो गवर्नमेंट, ये फौजी चाहते हैं कि जी हमें अंडरटेकिंग दी जाए कि जी इमरान खान आके हमें सजा नहीं देंगे या हमसे कुछ नहीं कहेंगे. दिस इज अ नंबर वन एडमिशन ऑफ गिल्ट. आप कन्फेशन तो यही कर रहे हैं कि जी हमने बहुत गंद किया हुआ है, हमें आप सजा नहीं देंगे, पहले तो आप हमें माफी दें और फिर हम आपसे बात करते हैं. तो दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पोजिशन फॉर द आर्मी अगर वो करना चाहते हैं. और एक हमारे पास ये भी स्टेटमेंट है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जरदारी साहब सबसे बड़े मास्टर हैं के वादे और जो ये जो एग्रीमेंट, ये कोई सही पे तो नहीं होते. ये तो कुरान की आयतें थोड़ी. हमने कल, ठीक है, हमने प्रॉमिस किया था, आज नहीं करते हम, जाओ कर लो, क्या करते हैं. डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड एंड हाउ स्ट्रांग यू आर. तो दीज आर ऑल political things which are in the works. So we have to wait for things to come out. Sir, मेरे से maybe Mohammed I can ask. Yeah, last question. Yeah, इसके ये इन्होंने कोई बंदा रह भी गया है इनका बीच में जो गारंटी दे सके at this point in time? I'm sure जितनी दफा धोखा इमरान खान को इन्होंने दिया है पिछले 2 साल के अंदर, वो कोई बंदा बीच में रह गया इनका, कोई मीडिएटर कि जिसकी गारंटीज हैव टू बी इंटरनेशनल एंड क्रेडिबल गारंटीज. और उसमें ये IMF भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि मे बी अमेरिकन कैन गेट इन्वॉल्व, सऊदीज कैन गेट इन्वॉल्व. जैसे कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ के वक्त में जब ये नवाज शरीफ वगैरह को भेजा गया तो सऊदीज गॉट इन्वॉल्व. उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इनको ले जाएंगे, दे विल बी अवे फॉर 10 years, they will not be allowed to do politics. So ये सब उन्होंने करके साइन वाइन करके चले गए. तो बाद में ये कहते रहे कि नहीं हमने तो 5 साल के दिए गए, तो ये वो जो भी कुछ हुआ बाद में. मगर somebody has to take responsibility कि जी हम ये कराएंगे, और he should be strong enough and credible enough to implement what they are writing and saying. अगर वो नहीं हो तो उसकी गारंटी का तो कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप कर ही नहीं सकते तो गारंटी देने का क्या फायदा. तो ये चीजें तो अभी देखने की है कि जी
कौन आता है, क्या ट्रम्प साहब के खाली बयानों से ये हिल जाएंगे या भाग जाएंगे, या और बाकी मुल्कों को भी आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, आपके जो बाकी विद इन द आर्मी कुछ लोगों को निकल के आना पड़ेगा कि जी वो भी कहें कि जी अब नहीं करें, बहुत हो गया इसको. तो दीज आर वेरी ओपन थिंग्स. लेकिन की फैक्टर अगेन यही है कि जी कितने लोग कितनी स्ट्रेंथ के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, हाउ मच दे कम आउट, हाउ मेनी कम आउट टू प्रोटेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दे डू, क्या वायलेंस होती है, क्या लड़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है. तो these things will have to be proved on the ground. Sir. My apologies, भाई साहब, आपके you're in demand. Raza has one last question. Sorry. शाहिद साहब, आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है और आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है. 24th की कॉल है, वी आर डिस्कसिंग दैट राइट नाउ, और लग ये रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम जो है वो हर तरफ से निकलेगी. आपकी राय में do you believe कि PTI has a plan of choking, like blocking all the major cities in Pakistan if these people like ये block कर देते क्योंकि इन्हें सुन लिया है, containers लगाने लगे and all that? Do you believe PTI सारे शहर बंद करने जा रही है? और अगर इस तरह करने जा रही है तो आपके ख्याल से इसमें PTI को कितना फायदा मिलेगा आगे? देखिए, शहर तो आपकी हुकूमत खुद ही बंद कर देगी और अभी से मेरा ख्याल है स्कूल और कॉलेज वो सारे उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, एक हफ्ते की छुट्टियां दे दी सबको. तो ये तो इनकी पैनिक मोड जो है ना वो तो गवर्नमेंट में नजर आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट में नजर आ रहा है. पीटीआई ने जाके जो प्रोटेस्ट करने जहां जहां करेंगे वो शहर बंद हो जाएंगे. अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जी पीटीआई वाले अगर बैठ गए जाके 2, 4, 6 जगहों में बैठ गए और वो शहर बंद कर दिए, तो जिम्मेदारी तो एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे है कि हम ये शहर चलाएं, इकोनॉमी को रन करें, लोगों को खाने की चीजें मिले, सप्लाईज तो कंटिन्यू, लोग आ जा सके. ये सब काम तो हुकूमत की जिम्मेदारी है. अगर नहीं कर सकते वो, तो देन हाउ लॉन्ग कैन यू कीप जिसे कहते हैं ना वो ब्लॉकेड लगा के और चारों तरफ से घेर के आप अंदर जो है वो किले के अंदर आप बैठ जाएंगे तो बहुत हाल. और अंदर से अगर फिर कोई गड़बड़ शुरू होगी तो देन व्हाट यू डू. तो ये सब चीजें डिपेंड करेगी हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ मच प्लानिंग यू हैव डन, कितनी आपने ये सारी चीजों को सोच के प्लानिंग की है, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टैंड दिस. तो दिस हैज टू बी सीन. और पीटीआई ने अब तक जो किया है वो तो बड़ा कोई इनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो लोग उनके आते हैं और फिर भाग जाते हैं. दैट इज नॉट बीन अ वेरी समथिंग टू लुक अप. बट अगर दोबारा उसको कोई स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, लोग आते हैं, लड़ते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, तो चलो लड़ाई भी अगर होती है तो हो, लेट्स सी. तो दैट विल द स्ट्रीट्स विल डिटरमिन वेयर वी आर गोइंग. बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब. आपने वो सीज मेंटालिटी की बात बिल्कुल ठीक की है. प्रॉब्लम इनकी सिर्फ ये है कि सीज अगर ये करें भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो यूजुअली वो सीज होते थे कासल्स के अंदर, कासल्स के अपने लोग उनके खिलाफ नहीं हो जाते थे, तो इनके तो अंदर ही अंदर के लोग कासिल ही बना दिया ना पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया. अगर चारों तरफ टंटरे लगा दिए, ना कोई आ सकता है, ना दैट्स अ सीज. जी, वो लेकिन कासिल को तोड़ के ये लोग निकलेंगे, अंदर से निकलेंगे, लड़ाई होगी, कितनी बड़ी लड़ाई होगी, किस किस्म की लड़ाई होगी, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड. सी बिल्कुल. सो भाई साहब, थैंक यू सो मच. आपका ज्यादा हमने टाइम ले लिया, बट आपने टाइम निकाला है. आपका अगेन आपकी वॉइस थैंक यू सो मच सर. एनी टाइम. थैंक यू सो मच. आप अपना ख्याल रखिए.